A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So you know very well, in the last class we have started the new chapter of your macroeconomics status, income determination and multiplier. So in the last class we have already discussed about the firstly we have seen that what are the different concepts that we are going to discuss in this chapter. Next we have started with the introduction. Then we discussed about the determination of the equilibrium level of income, output and employment. So in this we have to study this along with the basis of two approaches, that is determination of the equilibrium by AD and AS approach and determination of the equilibrium by the saving and investment approach. Okay? So in today's class we will discuss about the determination of the equilibrium level of income, output and employment from the AD and AS approach, right? So let's get started. So when we talk about the equilibrium level of income, so there is AD is equal to AS. That means aggregate demand is equal to aggregate supply. So we know very well that AD is equal to C plus I and AS equal to C plus S. So C and C will cut and it becomes equal to each other. That is, investment is equal to saving. That's why determination of the equilibrium in the equilibrium level of income, output and employment we will discuss on the basis of two approaches. First approach is determination of the equilibrium by the AD and AS approach, and the determination of the equilibrium by the saving and investment approach. Okay. So in today's class we are going to discuss about the determination of the equilibrium by the AD and AS approach. So put down the heading on your copy, that is determination of equilibrium by AD and AS approach. Okay, so determination of equilibrium कैसे करेंगे? AD and AS approach के through करेंगे. So the same I have already told you in the last class that it is given by the Keynes, that is J.M. Keynes. So whenever we will discuss, it is all on the basis of the Keynesian theory, right? So according to the Keynesian theory, the equilibrium level of income is determined when the planned level of aggregate demand is equal to the planned level of aggregate supply. So always we will talk about only the planned, not एक्चुअल. हम लोग जब भी बात करेंगे हमेशा प्लान की बात करेंगे कि जितने भी डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं, हाउस होल्ड हैं, वो कितना प्लान कर रहे हैं कंज्यूम करने का, वो कितना डिमांड करेंगे. सप्लायर कितना प्लान कर रहा है कि वो कितना कमोडिटी को सेल करेगा, सोल्ड करेगा. वो ये नहीं देख रहा है कि एक्चुअल में उसने कितना सेल किया है और हाउस होल्ड सेक्टर ने कितना डिमांड की है. हम लोग हमेशा प्लान की बात करेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया आपका, अकॉर्डिंग टू द कीन्शियन थ्योरी, equilibrium level of income is found where the planned level of aggregate demand is equal to planned level of aggregate supply, that is AS, right? कि जब प्लान्ड, हम लोग यहाँ पे प्लान्ड की बात कर रहे हैं, प्लान्ड अगर डिमांड किसके इक्वल हो गई? प्लान्ड सप्लाई की. ठीक है. सो सिंस AD इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, हमें पता है AD क्या होता है. AD को हम लोग और क्या बोलते हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, एंड इट इज इक्वल टू द कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट? सो Therefore AD is represented by the C plus I curve. अब जब भी हम लोग AD को रिप्रेजेंट करेंगे तो AD को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे? कंजप्शन आपको पता है ऊपर से, और इन्वेस्टमेंट
इस कर्व से हम लोग हमेशा इसको प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज़ द इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम में चाहे जितना भी चेंज हो जाए बट इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो AT&AS AS अप्रोच के थ्रू हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। अब जो फर्स्ट आता है दैट इज अजम्पशन। देखिए इकोनॉमिक्स जब भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए दैट मीन्स कि हम लोग अजम्पशन लेके ही चलेंगे, हम कुछ ना कुछ अज्यूम करेंगे कि ये ऐसा ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया दैट इज अजम्पशन। जब आपको डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय AT&AS AS अप्रोच पढ़ना है तो सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट बताएंगे, वो सिचुएशन बताएंगे कि AT&AS अप्रोच के इक्विलिब्रियम कहाँ पे फाउंड होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई की होगी। एंड हियर वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड द प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट वी विल टेक दी अजम्पशन, हम लोग अजम्पशन लेंगे। ठीक है, अजम्पशन में क्या है कि देखिए जो भी टेबल होता है, जो भी हम लोग टेबल फॉर्म करते हैं वो टेबल हमेशा ही अजम्पशन पे बेस्ड होता है। एंड जो हम डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम किस पे बेस्ड होता है, वो उस टेबल पे। तो जो भी हम टेबल बनाएंगे वो कुछ ना कुछ अजम्पशन बेस्ड होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी वो वैल्यूज़ और नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे पहला हो गया आपका दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लान की ही बात कर रहे हैं, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को हम लोग ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है दैट इज ₹100 करोड़। ठीक है, ये हम लोग ने अज्यूम कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग ने लिया है दैट इज कंजप्शन फंक्शन, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। सो C इज इक्वल टू C बार आपका क्या हो गया 50, मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन यहाँ पे 50 है। 50 होने का मतलब क्या हो जाता है आपको पता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन 50 मतलब कि अगर ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम है तो भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। B क्या होता है, B इज़ फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, कि इनकम के कितना चेंज होने में कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 0.5 हम लोगों ने अज्यूम कर लिया एंड दैट इज 1। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल ड्रॉ अ टेबल एंड देन मेक अ डायग्राम। ठीक है, तो अजम्पशन आप लोग देख लीजिए, अजम्पशन यही है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम लोग ने यहाँ पे 100 करोड़ को अज्यूम किया है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट हम लोगों ने कंजप्शन फंक्शन लिया, कंजप्शन फंक्शन इज 50 प्लस 0.5 Y। 50 यहाँ पे क्या है दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो क्या होता है कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। B इज़ फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज़ MPC, कि अगर इनकम में कितना चेंज हुआ है उस इनकम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने कंजप्शन में भी कितना चेंज किया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें टेबल बनाना है। सो फॉर द टेबल वी नीड मोर स्पेस ना, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देन ऑन दैट बेसिस वी विल मेक अ डायग्राम। तो देखिए सबसे पहला Y is for income, then C is for consumption, then S is for saving, I is for investment, then AD is equal to C plus I. Next AS is equal to consumption plus saving. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो इनकम आपका वही सेम 0, 50, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, सॉरी
500। ठीक है, ये आपका इनकम निकल गया। देन कंजप्शन, कंजप्शन की वैल्यू ले लेते हैं। कंजप्शन यहाँ पे क्या है, दैट इज 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। अब आपको पता है जब हमारे पास इनकम दिया रहता है और इनकम है और कंजप्शन है तो हम सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एस इक्वल टू वाई माइनस सी। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले आपका सेविंग आ गया, दैट इज -50, 0, 50, 100, 150 एंड 200। और आई इज फॉर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज़ द इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम में चाहे जितना भी चेंज हो जाए हमेशा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट ही होगा। क्यों होगा, बिकॉज इट इज़ डन बाय दी गवर्नमेंट सेक्टर करता है। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या है यहाँ पे, फॉर दी सोशल वेलफेयर में जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी के लिए, इसी को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज़ बेसिकली डन फॉर दी प्रॉफिट मोटिव एंड दिस इज़ दी डिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम, कि अगर इनकम चेंज होती जाएगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका एस हो गया इन्वेस्टमेंट। हम लोग हर एक लेवल पे 100 ही ले लेंगे, 100, 100, 100 एंड 100। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, हम लोग 80 निकाल लेंगे। 80 इज इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजप्शन आपका क्या है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 150, इसको और इसको प्लस करते जाइए। नेक्स्ट हो गया 200, 250, 300, 350, 300 प्लस 100, 400, राइट। नेक्स्ट हमें निकालना है एएस। एएस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो पहला आपका 0, देन 100, कंजप्शन प्लस सेविंग, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, ये आपका निकल गया। कंजप्शन AD इज इक्वल टू C प्लस आई एंड AS इक्वल टू C प्लस एस। तो यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट अब हमें जो करना है वो हमें क्या करना है, दैट वी हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यू ऑन दी डायग्राम। हम एक क्या करेंगे, डायग्राम पे बनाएंगे। तो इसमें ये कह रहा है पहले कि द अबव टेबल शोज दैट इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम एट ₹300 करोड़ ऑफ इनकम। कह रहा है ये जो ऊपर का टेबल है वो ये शो कर रहा है जो हमारी इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी की बात हम लोग कर रहे हैं, वो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेवल पे, इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल पे है, जब ये सिचुएशन है कि जब इनकम क्या दे रखी है, व्हेन इनकम इज ₹300। जब इनकम 300 है उस लेवल पे क्या है, इकॉनमी इक्विलिब्रियम पे। कैसे, ओनली बिकॉज ऑफ यही वो केस है जहाँ पे आपका AD AS के इक्वल है। AD is here 300 and AS is also at 300। यही वो सिचुएशन है जहाँ पे इकॉनमी इक्विलिब्रियम पे आएगी, बिकॉज when we talk about the equilibrium level of income, output and employment, so there will be AD should be equal to AS, and here also AD is 300 and AS is also 300। तो आप हर एक सिचुएशन पे देखिए, जब 0 लेवल ऑफ इनकम है तो AD आपका 150 है और AS 0 है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। जब 100 लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं तो AD 200 है और AS इज 100। यहाँ पे देखिए AD इज मोर देन दी, ठीक है, AD क्या है, वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू AS। यहाँ पे भी AD ज़्यादा है और यहाँ पे भी देखिए AD इज मोर देन दी AS। बट जब हम लोग 300 लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं, जब इनकम 300 दिया है तो यहाँ पे देखिए इस लेवल पे क्या कह रहा है कि आपका AD इज ऑल्सो, AD एंड AS बोथ आर एट दी 300, क्योंकि इनकम अगर हम लोग
हमारी इनकम 100 हो रही है, सॉरी 300 हो रही है, तो हम लोग AD डिमांड भी 300 कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई भी 300 की हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इनकम 400 है तो यहाँ पे देखो AD क्या हो गया, AD कम हो गया और AS ज़्यादा हो गया, तो ये भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। फिर जब 500 लेवल ऑफ इनकम है तो यहाँ पे देखिए आप AS क्या है, वो ज़्यादा एज कंपेरिजन टू AD। सो ये जो दोनों पॉइंट है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि AD इज़ लेस देन AS, दैट मीन्स AS यहाँ पे 400 और 500 है, AS ज़्यादा है, AD कम है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे AD क्या है, वो AS से ज़्यादा है। ठीक है, बट ये जो सिचुएशन है ये वाली, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि AD इज़ इक्वल टू AS। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS। तो जब भी हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय द AD एंड AS अप्रोच पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वो सिचुएशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, वही पॉइंट क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। दैट मीन्स इकॉनमी में 300 रुपीज़ का ही 300 ही कमोडिटी क्या हो रही हैं, सप्लाई हो रही है, और 300 जितनी भी सप्लाई हो जा रही है वहाँ पे सारा ही कंज्यूम हो जा रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अबव 3 सिचुएशन, हम अबव 3 सिचुएशन देखते हैं जब इनकम 0, इनकम आपकी 100 और इनकम आपकी 200 की। तो यहाँ पे देखिए डिमांड क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेरिजन टू सप्लाई। हम यहाँ पे डिमांड 150 कर रहे हैं और सप्लाई हमारी 0 हो रही है, कुछ भी हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर जब हम लोग बात करते हैं दैट इज़ जब डिमांड हमारी 200 हो रही है तो हम लोग सप्लाई बस 100 की कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट सिचुएशन देख रहे हैं जब डिमांड हमारी 250 है तो सप्लाई 200 की। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो कभी भी वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं होगा जहाँ पे एक भी चीज़ किसी दूसरे से ज़्यादा हो। ठीक है, और बट लास्ट 2 सिचुएशन में आते हैं जब इनकम आपकी 400 और 500 की है। जब इनकम हमारी 400 भी है तो यहाँ पे देखिए डिमांड अब कम हो जा रही है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है। मतलब जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है, वो बस डिमांड 350 की कर रहे हैं और सप्लाई 400 की हो जा रही है। जब सप्लाई ज़्यादा हो जा रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस हो जा रही है बट उतना उनका कंजप्शन नहीं हो रहा है। जब ज़्यादा कमोडिटी का प्रोडक्शन हो जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री, जो भी प्रोड्यूसर के पास इन्वेंट्री है और जो स्टॉक है वो एक्यूमुलेट है, वो उसके पास बचा हुआ है। सो दिस इज़ नॉट द आइडल सिचुएशन ऑफ एनी इकॉनमी। हम इसको नहीं बोलेंगे कि आइडल सिचुएशन है कि इकॉनमी में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बचे हैं। इकॉनमी में वो सिचुएशन अच्छी होगी कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सब कुछ कंज्यूम हो जा रहा है। बट हम लोग अगर 300 लेवल ऑफ इनकम पे देखते हैं तो 300 लेवल ऑफ इनकम पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो आपकी 300 है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, दैट इज 300 इज इक्वल टू 300। यही आपका क्या है, इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन किसके थ्रू, बाय AD एंड AS। अब कुछ नहीं है, एक सिंपल सा इसका डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे इक्विलिब्रियम शो करेंगे एंड देन वी विल एक्सप्लेन, राइट। सो अब इसका डायग्राम देखते हैं। Okay, so this is your income, output and employment। आपको पता ही है एक्स एक्सिस पे हम लोग इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, AD एंड AS। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकम आपका क्या दिया है, ये दिया है 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। हमें यहाँ पे किसके डायग्राम को बनाना है, किस लाइन को प्लॉट करना है, AD और AS को। इसकी वैल्यूज भी देख लीजिए, वही ले लेते हैं, दैट इज 100, 200, 300, 400 एंड 500। बस सिंपल है। अब
उसके बाद जो भी वैल्यू इसको प्लॉट कर देंगे। जब इनकम 0 है तो हम लोग 150 कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, आपको पता है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि एडी है, डिमांड कर रहे हैं क्योंकि इसमें कंजप्शन आ रहा है, और कंजप्शन क्या होता है आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है, तो कभी भी वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ये पॉइंट। सेकंड, फिर आपका क्या है कि 0 लेवल पे 150 है, 100 पे 200, 300 पे 300, 400 पे 350, 400 लेवल ऑफ इनकम पे 350 एंड 500 पे 400। ठीक है, देन वी विल ज्वाइन इट। हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। एडी लाइन मिल गई हमें, एग्रीगेट डिमांड की लाइन हमें मिल गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का पॉइंट देखिए, जब इनकम 0 है, AS 0 है। व्हेन इनकम इज 100, दिस इज ऑल्सो 100। देन व्हेन इनकम इज 200, so this is also 200. Then when income is 300, AS is also 300. When income is 400, this is also 400. And when income is so 500. अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग ने जब एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई में हम लोग ने देखा था कि एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग और क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। और सेम पॉइंट देखिए यहाँ पे, जब AS इक्वल टू वाई है तो इनकम 0, AS इज ऑल्सो 0। व्हेन इनकम इज 100, AS इज 100। व्हेन वाई इज 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500 एंड 500। ये क्या शो कर रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है। क्योंकि जब भी कमोडिटी सप्लाई हो रही है, प्रोड्यूसर कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहा है ना, वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहा है। उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के बाद उसको क्या होता है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने का मतलब है वो उनको कुछ फैक्टर इनकम दे रहा है और वही अल्टीमेटली इनकम जनरेट करती है। ठीक है, तो हमें ये सारे पॉइंट्स मिल गए। देन वी विल ज्वाइन, हम लोग ये लाइन को ज्वाइन कर देंगे। देन वी गेट दी एग्रीगेट सप्लाई कर्व। हमें एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व मिलेगा। ये मैं फ्री हैंड से बनाई हूँ इसलिए, नहीं तो अदरवाइज इट विल बी स्ट्रेट लाइन। एक ये स्ट्रेट लाइन है। This is the point of equilibrium, that is, it is AD and this is AS, and this point is AD is equal to AS. यही वो पॉइंट है जहाँ पे AD AS के इक्वल है। क्यों इक्वल है आपको पता चल गया। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो वी विल प्लॉट अ वन मतलब कि OM लेवल ऑफ इनकम पे क्या हो रहा है, इतनी पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है जहाँ पे AD क्या है, AS के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू 300, जो 300 के इक्वल है। तो यहाँ पे कह रहा है AD इज C+I कर्व। AD जो है वो आपका C+I कर्व है। ओके, सो C+I मतलब कहीं कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का। AS क्या है, वो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ प्रोड्यूसर इज प्लानिंग टू सेल दी गुड्स इन एन इकॉनमी। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, 45 डिग्री लाइन ही होता है। सो द अबव टेबल ये शो कर रहा है डायग्राम कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज 300 करोड़ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है जब OM आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज एट दिस लेवल AD इज 300 एंड AS इज ऑल्सो 300। यही वो पॉइंट है जहाँ पे AD और AS एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, दैट इज 300। सो इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड एट द पॉइंट E। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E पॉइंट पे डिटरमिन होगा, विच करस्पॉन्ड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट क्या शो करता है, दिस पॉइंट शोज दैट दी इट इज़ द सिचुएशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होने का मतलब है
कि अगर हम इकॉनमी में देख रहे हैं कि ए पर्सन इज़ एबल एंड विलिंग टू डू वर्क एंड दे गेट द जॉब एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, कि जो भी इकॉनमी में पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं, पीपल हैं, दे आर रेडी टू डू वर्क, वो रेडी हैं काम करने के लिए और एबल भी हैं, और उन्हें क्या है एग्जिस्टिंग जो भी वेज रेट चल रही है पर डे 500, 1000, उसके लिए वो रेडी हैं। मतलब इकॉनमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, मतलब जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन कहते हैं। एंड OM इज इक्विलिब्रियम लेवल हो गया आपका इनकम का, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का, जो ये शो करता है ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का। बट इसके पहले भी हम 2 पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। वो पॉइंट हो जाएगा दैट इज दिस वन इज M, दिस विल M1 एंड दिस विल M2। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग E1 और E2 ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं E1 एंड E2। E1 पॉइंट यहाँ पे देखिए ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं है। क्यों नहीं है? ओनली बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इक्विलिब्रियम पे कट नहीं किया है। ये वो सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन, ये पॉइंट जहाँ पे क्या है AD इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्व देखिए आपका AD का कर्व ऊपर है और AS का कर्व नीचे है। ये वाली, ये जो 3 सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ा था ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यही वो सिचुएशन है जहाँ पे आप देखोगे कि AD इज मोर देन द AS, डिमांड हमारी ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेरिजन टू सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम कम है और हम लोग यहाँ पे क्या करें, ऑटोनॉमस कंजप्शन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया, AD इज ग्रेटर देन AS। बट ये जो लास्ट 2 वाला हम लोग देखे थे एट द 400 लेवल ऑफ इनकम एंड द 500 लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सप्लाई बिकम्स मोर देन दी इनकम, ये वाला पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला यहाँ पे होगा AD इज लेस देन AS। AD क्या है वो AS से लेस देन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है। सप्लाई AS का ज़्यादा होने का मतलब ये है क्योंकि इनकम अगर हमारी बढ़ रही है तो पीपल टेंड्स टू डू दी मोर एंड मोर सेविंग। अब पीपल क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। दैट्स वाई ये जो सिचुएशन है, ये पॉइंट जो आपका हो गया जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS, ये वो पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बियॉन्ड दैट पॉइंट, इधर वी विल टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड, that situation is not the point of equilibrium because at that point the both curve does not intersect to each other, कि वो दोनों एक दूसरे को intersect नहीं करते। ठीक है, so this is the determination of the equilibrium by the AD and AS approach। AD का कर्व बनाया और AS का अप्रोच बनाया, कर्व बनाया सॉरी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और इम्प्लीकेशन ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम। देखो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का होगा, बट इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं होगा। तो उसके लिए कह रहा है कि जब इकॉनमी में हम लोग 2 सिचुएशन देख रहे हैं, 2 सिचुएशन जब व्हेन AD इज मोर देन द AS, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो रहा है, वो सिचुएशन क्या होगी। तो कह रहा है इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ AD ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द सप्लाई। इट मीन्स दैट buyer are planning to buy more goods and services than what the producer are planning to produce। कि इस केस में जो बायर है वो कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेरिजन टू जितना कमोडिटी सप्लाई हो रही है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका होगा कि जो भी स्टॉक ऑफ गुड्स हैं, जब डिमांड हमारी सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी, हम डिमांड ज़्यादा करें सप्लाई नहीं हो रही है, तो जो स्टॉक हैं इकॉनमी में वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं 10 चॉकलेट्स की, ठीक है, और सप्लाई बस 5 चॉकलेट की हो रही है, तो यहाँ पे कम हो जा रहा है ना। तो सेम चीज़ है कि अगर हम पूरी इकॉनमी की बात करते हैं तो डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेरिजन टू सप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा कि जो भी स्टॉक है वो कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे, ठीक है। उसको करेक्ट कैसे करेंगे, वो सिचुएशन क्या होगी, कैसे हम करेक्ट करेंगे। तो सिचुएशन वही होगी कि हमें फिर से इस पॉइंट पे वापस जाना है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चले गए, इस पॉइंट पे हमें वापस जाना है, तो प्रोड्यूसर अब क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन को एक्सपैंड करेगा, ठीक है। मतलब अगर उसने क्या किया है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है, वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब वो प्रमोट होगा, मोटिवेट होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और कमोडिटी को क्या करे, प्रोड्यूस करे। जब कमोडिटीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तब
ये जो कर्व आपका इधर आ गया है, हम लोग इस साइड आ गए हैं, फिर जब डिमांड हमारी ज़्यादा हो गई या सप्लाई कम हो गई है तो डिमांड तो हमारी ज़्यादा है ही, हम सप्लाई को अगर इंक्रीज़ कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो फिर अगेन वी विल रीच टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट उसका ऑपोजिट है द सिचुएशन व्हेन AD इज़ लेस देन AS, कि AD क्या है, वो AS से लेस देन है। वो सिचुएशन वो होगी जब डिमांड क्या हो जा रही है, वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है। इट मीन्स कि जो भी इन्वेंट्री है, जो भी गुड्स हैं, वो किसी भी प्रोड्यूसर के पास क्या होगी, वो सिंपली उसके पास अक्यूमुलेट रहेगी, उसके पास बची रहेगी, क्योंकि डिमांड हम लोग अभी कम कर रहे हैं और सप्लाई हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की राइट हैंड साइड की हम लोग बात करें, देखिए सप्लाई ऊपर ज़्यादा हो गई और डिमांड हमारी कम हो गई है। इस सिचुएशन पे क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स को बोला जाएगा कि वो क्या करें, वो अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस करें, क्योंकि सप्लाई जब ज़्यादा हो गई है, फॉर एग्जांपल सप्लाई 10 चॉकलेट की हो रही है, डिमांड हम लोग बस 5 चॉकलेट की कर रहे हैं, तो इस केस में जो भी प्रोड्यूसर उसको लॉस होगा ना, क्योंकि उसका कोई कमोडिटी को परचेज ही नहीं कर रहा है। उस केस में उसको बोला जाएगा कि वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर ले, रोक दे। ठीक है, जब वो रोक देगा, AS को फॉल हो जाएगा, देन AD इज इक्वल टू AS। सो वी अगेन रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।